Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. I am Mrs. Nahid Akhtar. I teach the subject of English. The code of this subject is ENG 112. Well, in today's lecture, I am going to discuss the course contents with you so that you can have a fair idea about the textual portion that we have to cover, and you may also be aware of the topics of grammar and composition that we have to cover during the session. This is a paper of 100 marks, and here first of all we have got these 8 English essays. These English essays have been picked up from Intermediate English Book 2, and during the session we will go through all these lessons thoroughly. I'll explain the ideas and concepts of the writer, and we will go through different difficult words and their meanings and synonyms. I'll also explain important questions to you. Means we will have to prepare thoroughly for the exercises, because all the questions, all the textual questions that are asked in your paper, they are picked from your exercises. And here I must also tell you that in your annual paper, from these lessons, 3 different types of questions are asked from you. The first is short questions, and these short questions are all the time asked from the exercises. So there will be no unseen questions, only those questions you will have to prepare that are given in the exercise at the end of each lesson. This question of short questions carries 20 marks in your exam. And then we have this next question of synonyms. Students, this word synonym means a word having similar meaning. So this is a multiple choice type of a question in your paper, and for this question you are given different options and you have to choose the correct option for the given synonym. And this is a question carrying 5 marks. Then again we have this question of cloze test. Now this term cloze test might be an unfamiliar or new term for you, so let me explain it to you. Here this is a kind of a paragraph, and this paragraph is picked up from the lessons that you have already studied in your class. And in that very paragraph 5 blanks are given and you are supposed to fill in the blanks. मीनिंग ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने जो लेसन पहले क्लास में पढ़ रखा होता है उसी में से ये पिकअप किया जाता है, एंड देन 5 blanks are given and you have to fill in the blanks. Now we come to the grammar portion. First of all, here we have got parts of speech. Now since you have been studying parts of speech in your प्रीवियस क्लासेस, सो आपको आइडिया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंस है. और अगर हम लैंग्वेज को एक बिल्डिंग कंसिडर कर लें फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो हैसियत है, जो सिग्निफिकेंस है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स होती हैं. तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट करेक्टली आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. और ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं. आफ्टर दिस वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ पंक्चुएशन. पंक्चुएशन के क्वेश्चन के लिए आपके एग्ज़ाम में एक शॉर्टर पैराग्राफ और ए फ्यू लाइंस दी जाती हैं, जहाँ पे आपने फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क और इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स को पुट करना होता है. एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ चेंज ऑफ नरेशन. यहाँ पे आपने डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, एंड यू मे बी आस्क्ड टू चेंज द इनडायरेक्ट वंस इनटू द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. देन वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूट. इसका ताल्लुक भी वोकेबलरी से है. यहाँ पे आपकी वोकेबलरी जज की जाती है इस क्वेश्चन में, वन वर्ड सब्सटीट्यूट के क्वेश्चन में. इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. हियर यू आर गिवन ए स्टेटमेंट इन योर एग्ज़ाम. एक तरह से एक सेंटेंस या स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, और उसके लिए आपने वन वर्ड सब्सटीट्यूट देना होता है कि उस पूरे सेंटेंस को, उस पूरे आइडिया या कॉन्सेप्ट को या उस स्टेटमेंट को एक वर्ड में आप क्या कहते हैं. इसके लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड बुक में आपके पास एक वोकेबलरी की लिस्ट मौजूद है, और वहाँ से हम इसको प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद ये पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है. हियर यू हैव टू मेक सेंटेंसेस. पेयर ऑफ वर्ड्स में देर आर 2 वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड अलाइक बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. तो यहाँ पे आपने उनके सेंटेंसेस बनाने होते हैं एग्जाम में. We come to the portion of composition now. First of all, here we have applications, and then we have to write a business letter.
यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एप्लीकेशन और लेटर का क्वेश्चन है, बोथ दीज क्वेश्चंस आर कंपल्सरी इन योर पेपर एंड यू सिंपली डोंट हैव ए चॉइस बिटवीन द टू। यानी आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चन भी नेसेसरीली अटैम्प्ट करना है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 इन योर पेपर, और जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिजनेस लेटर से रिलेटेड होता है। सो इनके दरमियान जैसे कॉमनली बहुत सारे बोर्ड्स चॉइस देते हैं, यू हैव टू चूज़ बिटवीन द टू, लेकिन आपके पास चॉइस कोई नहीं है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आपके पास ऑन द वन साइड यू हैव टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन दैट इज़ एड्रेस टू द प्रिंसिपल, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और उसके अगेंस्ट हमें जॉब एप्लीकेशन भी प्रिपेयर करनी है। एंड बिजनेस लेटर आर द फॉर्मल टाइप्स ऑफ लेटर्स, और इसके अंदर डिफरेंट बिजनेस की जो सिचुएशन है उनके ऊपर हमें लेटर लिखना होगा। एंड देन वी हैव द क्वेश्चन ऑफ एसे राइटिंग, कुछ टॉपिक्स प्रेस्क्राइब भी कर दिए हैं इंपॉर्टेंट बोर्ड ने, और नॉट दी यूनिक टॉपिक पे ऐसे लिखने को आता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट ऑफ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन इन फैक्ट इज़ ए स्किल जिसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके लिए कुछ हमारे पास प्रेस्क्राइब पैराग्राफ्स भी हैं बुक को, उनको भी हम प्रिपेयर करेंगे, कुछ अनसीन एक्सरसाइजेस भी करेंगे, सो दैट यू कैन हैव ए वेरी फेयर आइडिया अबाउट